Hello dear friends, this is Devashish and I welcome you all to my channel Statistics Curiosity. Friends, today we will discuss about Z-test and T-test in the series Hypothesis Testing of Significance. I have given the link of this playlist in I button. You can click and see the playlist. So today we will discuss about Z-test and T-test in context of testing the significance of population mean. मतलब हम क्या करेंगे कि पॉपुलेशन मीन की सिग्निफिकेंस देखेंगे. एक्चुअली वी आर कंपेयरिंग Z10 एंड T टेस्ट. वी आर स्टडिंग Z10 एंड T टेस्ट इन कंपेरेटिव वे. सो वी हैव टू चूज दैट सिचुएशंस in which we can apply both Z-test and T-test in certain conditions. ठीक है, और we can compare both of them. तो Z-test और T-test को कंपेयर करने के लिए मैंने कुछ सिचुएशंस ली हैं. सबसे पहले जो फर्स्ट सिचुएशन है हमारी जिसमें हम डिस्कस करेंगे, अंडर द सिग्निफिकेंस ऑफ population mean. So there are two situations in the significance of population mean. First situation is single sample problem. So in single sample problem, the hypothesis is H naught mu is equals to mu naught versus H1 mu is not equals to mu naught. मतलब है क्या कि पॉपुलेशन मीन क्वेश्चन में कुछ पॉपुलेशन मीन दिया होगा और हमें ये चेक करना होगा कि वेदर द पॉपुलेशन मीन, फॉर एग्जांपल वेदर द पॉपुलेशन मीन इज़ 20 or not. Test whether the population mean is 20 or not on the basis of the random sample given in the question. ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है सिंगल सैंपल प्रॉब्लम. सिंगल सैंपल मीन्स क्वेश्चन में प्रॉब्लम में केवल एक सैंपल दिया होगा. ठीक है, तो हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि Z टेस्ट कब लगाएंगे और T टेस्ट कब लगाएंगे सिंगल सैंपल प्रॉब्लम में कंसर्निंग दिस हाइपोथेसिस. ओके, तो ध्यान से देखिए और इस चीज़ को समझिए ध्यान से. देखिए, इन Z टेस्ट द फॉर्मूला यूज्ड इज x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट n टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. एंड इन T टेस्ट द फॉर्मूला इज x बार माइनस म्यू अपॉन s अपॉन अंडर रूट n. अब डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज? The difference is sigma is known here. Sigma means population standard deviation or population variance is known in this case, and sigma is unknown is in this case. And remember, in both cases x follows normal. That means the data is normally distributed. If the data is normally distributed, only then you can apply Z10 and T test in these situations. Okay, so if sigma is known given in the question, you can use Z test, and if sigma is unknown, you can use T test. Also, there is one major difference, is that the Z test is used when the sample size is large. Large means generally taken as n greater than 25 or in some books 30. And if n is less than equal to 30, then you can use T test. They are same problems, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम्स होंगी. केवल और केवल डिफरेंस क्या होगा? जो सैंपल का साइज होगा, इसमें सैंपल का साइज स्मॉल होगा और यहाँ सैंपल का साइज लार्ज होगा. तो लार्ज सैंपल के साइज में यू विल यूज़ दिस फार्मूला और Z टेस्ट फार्मूला, और स्मॉल सैंपल साइज में यू विल यूज़ दिस फार्मूला और T टेस्ट फार्मूला. ओके, एंड रिजल्ट कैसे देना है आपको?
what will be the conclusion criteria? The conclusion criteria is same under this alternative hypothesis. The criteria is if calculated value is less than tabulated value, then H naught is accepted. If calculated value is less than tabulated value, remember the tabulated value Z alpha by 2 or T alpha by 2, it is seen from the Z table or T test table under certain alpha. Alpha is level of significance. This level of significance is generally fixed at 5% or 1%. Okay, so this is the first problem, single sample problem, and this is very important for commerce students and for those students who are preparing for UGC NET. Okay, and it is also important for economics and statistics students as well. एंड अब हम बात करते हैं सेकेंड केस की. सेकेंड है डबल सैंपल प्रॉब्लम. रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन. नाउ द सेकेंड वन इज डबल सैंपल और टू सैंपल प्रॉब्लम. रिमेंबर देयर आर टू केसेस. Case 1, independent sample. Then we will use case 2, dependent sample. उसकी बात हम बाद में करेंगे. ओके, केस 1 independent sample की पहले. तो यहाँ केस independent sample में there are two samples. Then the hypothesis concerned is mu1 equal to mu2 वर्सेस mu1 इज नॉट इक्वल्स टू mu2. तो यहाँ हम ये चेक करेंगे कि वेदर बोथ पॉपुलेशंस हैव सेम मीन और नॉट. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल्स गिवन इन द प्रॉब्लम. तो Z टेस्ट और T टेस्ट कंपेरेटिव देख लेते हैं. Z टेस्ट में यू विल यूज x1 बार माइनस x2 बार अपॉन अंडर रूट में सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2. जबकि टी टेस्ट में यू विल यूज फॉर्मूला x1 बार माइनस x2 बार अपॉन अंडर रूट में s स्क्वायर 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2. अब देखिए हुआ क्या, व्हाट इज द डिफरेंस. बाकी जो अजम्पशंस हैं वो बिल्कुल पुराने वाले की तरह ही हैं. यहाँ वो दोनों ही जगह x किसे फॉलो कर रहा है. इन बोथ केसेस x फॉलोज नॉर्मल. हियर सिग्मा इज नोन, हियर सिग्मा इज अननोन. बट रिमेंबर हियर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर नोन बट मे और मे नॉट be common. Here sigma is unknown but common. याद रखिएगा इस केस में जब आप Z टेस्ट यूज करेंगे पॉपुलेशन का साइज वही n ग्रेटर देन 30, इधर वही n लेस देन 30. बट रिमेंबर सैंपल का साइज सॉरी. बट रिमेंबर हियर both populations have different standard deviations or variance and different may or may not be different, but in this case in t test case sigma is unknown but common. तो अब देखिए हुआ क्या, कैसे आपको ये फॉर्मूला मिला. यहाँ पे ये तो sigma 1 and sigma 2 are given in the problem, but how can you find this s square? Because there are two samples given in the problem. So how can you find single s square? This s square is actually known as pooled or combined
variance and is calculated using the formula n1 minus 1 s1 square plus n2 minus 1 s2 square अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। देखिए हुआ क्या है, मैंने यहाँ पे बताया सिग्मा इज अननोन बट कॉमन, सो वी हैव टू फाइंड ए सिंगल एस्टीमेट नॉट s1 स्क्वायर एंड s2 स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड ए सिंगल एस्टीमेट यूजिंग बोथ सैम्पल्स। तो एक हमने इसको बोलते हैं कंबाइंड वेरिएंस, जैसे कंबाइंड मीन होता है, एक हमने सिंगल एस्टीमेट फाइंड करा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, x1 बार x2 बार फाइंड करने होंगे फ्रॉम द गिवन सैम्पल्स एंड देन हमें s स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा कंबाइंड। तब इन सब वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों केसेस हो गए, ये हो गया टू सैम्पल प्रॉब्लम का। रिमेंबर टू सैम्पल प्रॉब्लम वेयर सैम्पल्स आर गिवन एज इंडिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, क्योंकि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल के साइन किए है ना, तो इन फॉर्मूलों के जो न्यूमरेटर पोर्शन है ना, इनमें मोड भी आएगा, न्यूमरेटर ऊपर की तरफ। देयर मस्ट ऑल्सो बी ए मॉड्यूलस एज द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ऑफ नॉट इक्वल टू साइन, ओके। देयर मस्ट बी ए modulus in the formula, okay, only in the case where alternative hypothesis is of not equal to sign, which is obvious case in generally होता ही है ना, okay। now the case 2, double sample problem में case 2, this case is known as paired sample case or also known as paired t-test। in this problem the samples are given as dependent। याद रखिए सैम्पल्स कैसे होंगे, दो सैम्पल्स ही गिवन होंगे, टू सैम्पल्स गिवन होंगे, बट दोनों सैम्पल्स कैसे होंगे, डिपेंडेंट होंगे। डिपेंडेंट मतलब एक तो दोनों सैम्पल्स में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम होंगे, बोथ सैम्पल्स मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके, दोनों सैम्पल्स में। दूसरा, किसी तरीके से कुछ ऐसा इंडिकेशन दिया होगा क्वेश्चन में कि सैम्पल्स डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होंगे, एक वैल्यू दूसरे, दोनों सैम्पल्स की जो वैल्यूज़ होंगी वो एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से अफेक्टेड होंगी, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन यू विल यूज़ पेयर्ड टी टेस्ट, ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशंस, अंडर एनी कंडीशन। रिमेंबर यहाँ पे जेड टेस्ट नहीं होता डिपेंडेंट सैंपल के केस में, पेयर्ड टी टेस्ट में टी टेस्ट ही यूज़ करना पड़ता है आपको। स्मॉल एन का साइज़, सैंपल का साइज़ चाहे लार्ज हो चाहे स्मॉल हो, ठीक है। पर हाँ ये दो सिचुएशंस तो हैं ही, एक्स नॉर्मल को फॉलो करता है, यानी कि जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और सिग्मा अननोन होता है बट कॉमन होता है। अननोन तो होगा ही है ना जब पेयर टी टेस्ट, जब टी टेस्ट यूज़ करोगे आप, ओके। तो यहाँ पे फॉर्मूला टी इज इक्वल्स टू डी बार अपॉन एस डी अपॉन अंडर रूट एन। डी क्या चीज़ है यहाँ पे, डी इज़ x1 माइनस x2। x1 माइनस x2 मतलब एक सैंपल से दूसरे सैंपल की वैल्यू को माइनस करना है आपको। जितनी सैंपल 1 में वैल्यूज़ होंगी उतनी ही सैंपल 2 में वैल्यूज़ होंगी, बस आपको क्या करते जाना है, बस आपको सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो पहली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू इन सैंपल 1 इज सब्सट्रैक्टेड, सेकेंड वैल्यू इज इन सैंपल 2, ओके, एंड दिस इज, ठीक है, मोड लगा हुआ है यहाँ पे। तो अगर नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी आपकी। तो हर वैल्यूज़ ने आपको माइनस किया, एंड ये जो कॉलम है, ये डी आई वाला कॉलम, इस कॉलम का मीन ऑफ डी आई इज़ डी बार, एंड इस कॉलम का वेरिएंस इज एस डी, ठीक है। दीज टू वैल्यूज़ इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैम्पल्स, और फिर इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे और फिर कंक्लूजन वैसे ही देंगे जैसे हम बाकी सारे टेस्ट में देते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने टी टेस्ट और जेड टेस्ट की कंपैरेटिव स्टडी देखी पॉपुलेशन मीन की सिग्निफिकेंस के कॉन्टेक्स्ट में, ओके। तो आगे अभी और भी सैंपल, अभी टी टेस्ट और जेड टेस्ट बहुत वास्ट हैं, बहुत ह्यूज उनका क्राइटेरिया है, बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशंस हैं उनकी जिन पे बात करी जा सकती है अभी, ठीक है ना। ये तो केवल सिंपल केस था, केवल पॉपुलेशन मीन का। चलिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, और ये भी बताइएगा कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो वो भी मेंशन प्लीज़ करिएगा।
और आप बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं न्यूमेरिकल भी इन वीडियोस के बारे में न्यूमेरिकल भी बना सकता हूँ, न्यूमेरिकल के पे भी हम समझा सकते हैं न्यूमेरिकल्स के थ्रू। ठीक है, तो प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नई वीडियोज़ का पता चलता जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।